Hello viewers, today I am going to discuss a very important and basic topic of organic chemistry, electron displacement in organic molecule. It may be of different types. First, I am going to discuss inductive effect. A covalent bond between two different atoms A and B, where B is more electronegative and A is less electronegative. So similar to polar covalent bonds, sigma electrons get polarized towards more electronegative B atom, resulting partial negative charge on B and partial positive charge on A. Okay, the polarization of sigma electrons towards more electronegative bond forming atom is called inductive effect. Sigma electrons are very strongly held to the nuclei of bond forming atoms, so here the extent of polarization is very low. So inductive effect is a weak but permanent effect. Inductive effect can be transmitted in the carbon chain. मतलब कार्बन चेन में वो आगे बढ़ेगा, but its intensity decreases sharply with increase in distance and becomes negligible on fourth atom. On basis of direction, inductive effect may be of two types. First, plus I effect, where a less electronegative sigma electrons are polarized towards carbon chain of molecule under the influence of a less electronegative atom or group. Less electronegative, resulting partial negative charge on the carbon atoms. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, in amount of negative charge on carbon atom decrease करेगा, double delta minus, triple delta minus and fourth पर ये negligible हो जाएगा. These are groups showing plus I effect CH2 minus NH minus O minus CO minus Cr3 tertiary alkyl group, CHR2 secondary alkyl group, CH2R primary alkyl group, then methyl, then deuterium, then hydrogen. Now plus I effect, so minus I effect. It involves polarization of sigma electrons away from carbon chain of molecule due to presence of a more electronegative atom or group, resulting partial positive charge on the carbon. Here X is a more electronegative atom group, so electrons are polarized away from carbon chain, resulting partial positive charge on the carbon atom is decreasing with increasing distance, double delta plus, triple delta plus, and become negligible on fourth atom. These are the groups showing minus I effect. A point to be noted, OH and OR. OH and OR. R is electron releasing, then H. So oxygen atom in OR group has greater electron, should have greater electron density than OH, oxygen atom of OH group. So OR की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी OH से कम होना चाहिए, लेकिन यहां ज्यादा बता रहे हैं. इसका रीजन जानिए. OH ग्रुप पार्शियली आयोनाइज कर रहा है, BO माइनस NH प्लस. तो O माइनस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग. तो OH ग्रुप जो है तो ये पार्शियली एग्जिस्ट कर रहा है OH एंड O माइनस. तो OH is electron withdrawing and O minus is electron release. So combined effect के कारण OH less electron withdrawing than OR हो जाता है. OR में यह आयनाइजेशन नहीं होता है. Similarly NR2 और NH2 में है. ये एक मॉलिक्यूल दिया गया जिसमें पूछा जा रहा है हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ प्लस आई इफेक्ट. Plus I effect. This is methyl, O minus and CO minus 4 groups. Resonance in mesomeric or mesomeric conjugated system. So, mesomerism. Resonance के बारे में आपने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में. इट इन्वॉल्व रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ pi electrons amongst coplanar atoms. If redistribution of pi electrons occurs between more than two atoms, at least
3 atoms. Such system is called conjugated system. This may be of following types. First, आप देख रहे हो pi conjugation. 2 pi bonds are separated by a sigma bond. This pi electron shifted towards oxygen atom. Then positive charge on carbon atom के लिए ये pi electron shifted towards this CH2 plus and O minus. Several examples. Benzene pi electron का डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है. COH इधर गया तो इधर से pi electron ऐसे गया. अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो ये pi electron यहाँ आ गया. पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होकर यहाँ आ गया. फिर ये pi electron यहाँ आ रहा तो पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होकर आ गया. फिर ये जो pi बॉन्ड इधर आ गया तो इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है रजिस्ट्री से लिखने के लिए. नेक्स्ट है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन pi conjugation. A atom with lone pair of electron is attached to carbon atom forming pi bond. Lone pair is shifted atom to bond, and here pi electrons are bound to atom. दो शिफ्ट साथ साथ हो रहा है तो इस एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ निगेटिव चार्ज. इसी तरह यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीजन एटम इज अटैच टू एटम फॉर्मिंग बॉन्ड. ये यूनिटिंग स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं जिसको कि आपको प्रैक्टिस करने होंगे. NH2 नाइट्रोजन एटम with lone pair electron attached to benzene, carbon atom benzene forming pi bond. These are the electronic shifts where more than two atoms are involved in delocalization of pi electrons. Next, negative charge pi conjugation. Negative charge pi conjugation. Similar to lone pair pi conjugation. Only difference इस केस में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वाला आइटम न्यूट्रल है, यहाँ लोन पेयर वाला निगेटिवली चार्ज है. नथिंग. It is very similar to lone pair pi conjugation. Only difference the atom containing lone pair is negatively charged. ये लोन पेयर इधर आया तो निगेटिव चार्ज शिफ्ट होके यहाँ आ गया. Next, positive charge pi conjugation. Atom with positive charge attached to carbon atom forming pi bond. ये इस तरह के रिजल्टिंग स्ट्रक्चर में आप एक डायरेक्शन पकड़ लो. ये अगर आगे पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, फिर ये इधर आया, एक डायरेक्शन आप पकड़ लो. उसके बाद अब आ रहे हैं, अगला है ऑड इलेक्ट्रॉन पाई कंजुगेशन. एटम विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अटैच्ड टू कार्बन एटम फॉर्मिंग पाई बॉन्ड. इस बॉन्ड का होमोलिसिस हो रहा है तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, बॉन्ड बनाया, इधर ये लॉन पे एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया. ये तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजुगेशन हुआ. नाउ फीचर्स ऑफ कंजुगेशन. कुछ कंजुगेशन में कुछ कंडीशन है या कुछ फीचर्स है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना है हमेशा. lone pair of electron in conjugation are present in pure atomic orbital or p orbital. जो lone pair of electron कंजुगेशन में रखेंगे वो p ऑर्बिटल में रहेंगे. हाइब्रिड ऑर्बिटल में नॉर्मली आपको बताया जाता है लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल बताया, लेकिन जब ये कंजुगेशन में आएगा तो वो p ऑर्बिटल में आएगा. तो ऑल एटम्स एंड कंजुगेशन और sp और sp2 है. बताइए यहाँ देखिए ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, एक लॉन पेयर है लेकिन वो p और sp2 है बताइए. उसी तरह यहाँ
यहाँ कोई कंजुगेशन नहीं है, तो ऑक्सीजन 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पे है, sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन कंजुगेशन के कारण यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर हाइब्रिड रहा। एक लोन पेयर जो कंजुगेशन में वो p ऑर्बिटल में आ गया और sp2 हाइब्रिडाइज। यहाँ कोई कंजुगेशन sp3 कंजुगेशन है तो sp2। If any conjugate position has more than one pi bond, only one pi bond is in conjugation। जैसे यहां देखिए 2 पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड px और py ओवरलैप से बना है, और ये पाई बॉन्ड px से दिखा रहा है। तो px वाला जो पाई बॉन्ड है इसके साथ कंजुगेशन में होगा, py वाला नहीं होगा। नेक्स्ट, if any conjugate position has more than one lone pair of electron, only one lone pair of electron are in conjugation। जिससे ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर हैं, तो एक लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, वो कंजुगेशन में नहीं होगा, जो p ऑर्बिटल में रखा गया वो कंजुगेशन में होगा। If any conjugate position है pi bond with lone pair of electrons, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज और ऑड इलेक्ट्रॉन, ओनली pi bond in conjugation। जैसे देखिए यहाँ नाइट्रोजन पाई बॉन्ड भी बना रहा है और इसके पास लोन पेयर है, तो सिर्फ पाई बॉन्ड कंजुगेशन में होगा, लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं होगा, इसलिए इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल में दिखाया गया है। All atoms in conjugation has p orbital of comparable size। क्योंकि कंजुगेशन पाई बॉन्ड से हो रहा है तो वहां लेटरल ओवरलैप होना चाहिए, तो ऑर्बिटल का साइज कंपेरेबल होना चाहिए। तो ये ऑक्सीजन एटम और कार्बन एटम, नाइट्रोजन कार्बन एटम, फ्लोरीन कार्बन एटम, तो यहाँ लोन पेयर कंजुगेशन इफेक्टिव होगा, लेकिन यहाँ क्लोरीन 3p ऑर्बिटल के साथ कार्बन के 2p ऑर्बिटल को ओवरलैप करेगा, इसलिए यहाँ कंजुगेशन उतना इफेक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस कंजुगेशन इज मोर इफेक्टिव देन क्रॉस कंजुगेशन। ये देखिए पॉजिटिव चार्ज पाई सिग्मा पाई, दो 2 pi bonds and positive charge are in conjugation, this is called continuous conjugation। And in this case, if either this pi bond is in conjugation or this pi bond in conjugation, simultaneously both pi bonds are not in conjugation, so this is more effective, this is continuous conjugation and this is cross conjugation। One thing is notable, only ortho and para position of benzene ring are in conjugation with group attached to it। जैसे ये 2 ग्रुप है, देखिए तो इसका पॉजिटिव चार्ज और ऑर्थो और पारा पर आ रहा है, मेटा पर नहीं आ रहा। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप इन मॉलिक्यूल, अगर प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप इन मॉलिक्यूल, बल्की ग्रुप आने से मॉलिक्यूल में पोलैरिटी डिस्टर्ब हो सकती है, और जही पोलैरिटी डिस्टर्ब होगी उसमें कंजुगेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। जैसे CH3 के आ जाने से ये C21 कार्बन एटम का प्लेन बेंजीन रिंग के प्लेन से के परपेंडिकुलर हो जाएगा, अब यह बेंजीन रिंग CO का कंजुगेशन में नहीं होगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट अगला टॉपिक है जो आपसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर देखिए आपको पूछा जाएगा कौन सा मोड स्टेबल, तो इसको जज करने के लिए हम डिक्रीजिंग प्रायोरिटी के साथ पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। पहला, नॉन पोलर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर मोर स्टेबल हैज ग्रेटर स्टेबिलिटी। नेक्स्ट, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ग्रेटर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैज ग्रेटर स्टेबिलिटी। थर्ड में, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग एटम विथ कंप्लीट ऑक्टेट and duplet has greater stability। बाइपोलर रिजोनेटिंग, जहां पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर होना चाहिए, या निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होना चाहिए, मोर स्टेबल होगा। इस बाइपोलर स्ट्रक्चर में पॉजिटिवली चार्ज एटम और एटम के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ऊपर में दिया गया उसका प्रायोरिटी ज्यादा है, पहले उसी। वन मोर पॉइंट, ए मोर स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैज ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू रिजोनेंस हाइब्रिड। कुछ एग्जांपल आपको दिए गए हैं, विच कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू द रिजोनेंस हाइब्रिड, मतलब कौन सा मोस्ट स्टेबल है। देखिए रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, आंसर डी। यहां देखिए इस कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है बी में,
आपको यहाँ इस दोनों में सब में दो पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, इसमें तीन पाई बॉन्ड दिख रहे हैं। पहला सिम डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। यहाँ देखिए एक एक दो दो पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, और यहाँ एक दो तीन तीन पाई बॉन्ड हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर। फिर से देखिए, पहले पाई बॉन्ड काउंट कीजिए, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन, यहाँ चार पाई बॉन्ड, इसलिए मोस्ट स्टेबल हो गया। मोस्ट स्टेबल ऑफ इन ऑल दीज, तीन पाई बॉन्ड, तीन पाई बॉन्ड, तीन पाई बॉन्ड, तीन सब पाई बॉन्ड, सब में तीन है। अब ध्यान दीजिए, ये नॉन पोलर है तो सबसे ज्यादा होगा। यहां आइए, बी और डी सिमिलर है, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, लेकिन ऑक्सीजन ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ डिस्टेंस कम है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस कम है, और यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है। इसमें देखिए ए बी सी डी दिया हुआ है, पाई बॉन्ड पहले काउंट कीजिए, दो एक तीन, यहाँ दो पाई बॉन्ड है, यहाँ तीन पाई बॉन्ड है, यहाँ तीन पाई, मतलब बी तो लिस्ट हो गया। उसके बाद आई ए नॉन पोलर है तो ये सबसे ज्यादा हो गया, और बी सबसे कम हो गया। अब सी और डी को डिस्कस करना है। देखिए, सी में पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम पर है और निगेटिव चार्ज कार्बन एटम पर है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है और निगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर है, तो ऑक्सीजन तो कॉमन रह गया, तो यहां निगेटिव चार्ज कार्बन पर है, निगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर है, तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इसलिए डी ज्यादा हो गया। मोस्ट स्टेबल ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए पहले पाई बॉन्ड देखिए, एक दो, एक दो, दो पाई बॉन्ड, यहाँ तीन पाई बॉन्ड, इसी से डिस्टिंग्विश हो गया। मोस्ट स्टेबल ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर, पाई बॉन्ड काउंट कीजिए, तीन तीन तीन। अब यहां देखिए, इस पॉजिटिव आंसर बी दिखा रहे हैं, इस पॉजिटिव चार्ज के साथ यहां ये CH3 का आगे पढ़ाएंगे, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लग रहा है। पाई बॉन्ड के साथ प्लस है, फिर CH3 का हाइपर कंजुगेशन लग रहा है। नाउ मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक रेजोनेंस आपने पढ़ा है, द पोलराइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंजुगेटेड मॉलिक्यूल under influence of any group or atom is called mesomeric effect. Polarization of pi electrons in a conjugated molecule. तो पाई इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होता है, इसलिए हाँ एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन ज्यादा होगा, तो एक स्ट्रॉन्ग एंड परमानेंट इफेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट बात, इंडक्टिव इफेक्ट का इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ घट रहा था, बट इंटेंसिटी ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट रिमेंस सेम इन ओवरऑल कंजुगेटेड सिस्टम। जहां तक कंजुगेशन होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट इंटेंसिटी सेम रहेगी, डायरेक्शन के बेसिस पर। प्लस एन इफेक्ट, जब पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं टुवर्ड्स कार्बन चेन, प्लस एन इफेक्ट, और अवे फ्रॉम कार्बन चेन जाएंगे, माइनस एन इफेक्ट। दीज आर द ग्रुप्स विथ प्लस एन इफेक्ट, माइनस एन इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन्स आर pi electrons are polarized away from carbon chain, पॉजिटिव चार्ज आएंगे, ये ग्रुप विथ माइनस एन इफेक्ट। एक इंपॉर्टेंट चीज, ये फिनाइल ग्रुप और CH2 कैन एग्जिबिट बोथ प्लस एम एंड माइनस एम डिपेंडिंग ऑन कि ग्रुप कैसा जुड़ा है। नाउ एरोमेटिसिटी, a cyclic planar molecule consisting, Huckel rule है, 4n plus 2 pi electrons and maybe 0, 1, 2, 3, 4 delocalized over all ring forming atoms. कंडीशन देखिए, cyclic planar molecule consisting 4n plus 2 pi electrons delocalized over all ring forming atoms is called aromatic molecule or ion. This character is called aromaticity. An aromatic molecule has extra stability. Aromatic molecule can be divided into
टू क्लासेस। बेंजीन वाइट फंडामेंटल पहला ऑर्गेनिक एरोमेटिक बेंजीन को कहा गया था। बेंजीन को कहा गया था इसलिए वो जिस मॉलिक्यूलर एरोमेटिक मॉलिक्यूलर बेंजीन नहीं होता बेंजीन वाइट कहेंगे। 3 pi bond 4n plus 2 6 हो रहा है n equal to 1 7 pi bond 5 pi bond 4n plus 2 10 7 pi bond नॉन बेंजीन वाइड। नॉन बेंजीन वाइड बेंजीनिंग नहीं होंगे और ये हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल है। 2 पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर कंजुगेशन में होगा। आपको बताया गया कि जब एक से अधिक लोन पेयर तो एक ही कंजुगेशन में 2 पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन का लोन पेयर नाइट्रोजन का लोन पेयर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स 3 पाई बॉन्ड हियर बोरन 6 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है। बोरन sp2 है बता एक वैकेंट p ऑर्बिटल है तो बोरन बिहेव्स लाइक C+8 तो वो वैकेंट p ऑर्बिटल कंजुगेशन में आएगा। दिस मॉलिक्यूल ये वाला जो इनर वाला पाई बॉन्ड है वो उसको कंसीडर नहीं किया जा रहा है, सिर्फ एक्सोसाइक्लिक ऐसे जो पेरिफेरल वाले पाई बॉन्ड कितना होगा 1 2 3 4 7 पाई बॉन्ड। इस पाई बॉन्ड को इग्नोर किया जा रहा है डिलोकलाइजेशन में। दिस पाई बॉन्ड 4n plus 2 यहां भी 5 पाई बॉन्ड के साथ एरोमेटिक आयंस। These are aromatic ions. These are dianion of ascorbic acid. इस कंडीशन में तो ये मॉलिक्यूल इस कंडीशन में तो एरोमेटिक नहीं है लेकिन इसके रिजल्टिंग असर ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर से लग गया तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसी तरह अभी ये एरोमेटिक नहीं है लेकिन पोलराइजेशन के कारण इधर ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया तो निगेटिव चार्ज पॉजिटिव एरोमेटिक हो गया। सिमिलर केस यहां आ रहा है। एंटी एरोमेटिक में सिर्फ डेफिनेशन तो वही कहते हैं साइक्लिक प्लेनर मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग 4n electrons and maybe 1 2 3 delocalized all things forming atoms is called anti-aromatic molecule। 4n per pi electron सिर्फ डिफरेंस 4n plus 2 था और n में भी 1 2 3 4 pi electrons 4 anti-aromatic molecular ion has paramagnetic character and very low stability। पैरामैग्नेटिक वेरी हायर क्लास स्टडीज की बात है इसको ऐसे ही याद रखेंगे। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अमॉन्ग अनस्ट्रक्चर्ड मॉलिक्यूल अगर देखा जाए तो एरोमेटिक सबसे ज्यादा होगा देन कंजुगेटेड देन नॉन कंजुगेटेड देन एंटी एरोमेटिक। हाइपर कंजुगेशन प्लस आई इफेक्ट में आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी प्लस इफेक्ट 3 डिग्री का सबसे ज्यादा होगा और मिथाइल का सबसे कम होगा। लेकिन when these alkyl groups are attached to sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इनकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी CH3 का सबसे ज्यादा है और ग्रेटर देन 1 डिग्री alkyl 2 डिग्री देन 3 डिग्री। It is reverse order of plus I effect. This is due to hyperconjugation which involves delocalization of sigma electrons of alpha CH bond with pi electrons and paired electron positive charge of sp2 और sp hybridized carbon। देखिए एग्जांपल ये अल्फा कार्बन है तो अल्फा CH बॉन्ड हुआ और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ये इधर आया और इसके साथ ये इधर आ गया। ये डिलोकलाइजेशन ऑफ अल्फा CH बॉन्ड विथ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अल्कीन में delocalization of alpha CH bond of with pi electrons of sp hybridized carbon। Delocalization of alpha CH bond with positive charge carbocation। Delocalization of alpha CH bond with odd electron।
तो सिमिलर टू रिजोनेंस में आपने पढ़ा कि जो भी आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देते हैं वो एक्चुअल नहीं होता है, एक्चुअल कहीं के बीच का होता है। ये भी कोई कोई ये दोनों में से कोई एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं, मतलब ये जो H प्लस आयन या हाइड्रोजन एटम दिखाए जा रहे हैं हाइपर कंडीशन, दीज आर नॉट कंप्लीटली डिटैच्ड। एक्चुअल स्ट्रक्चर कहीं के बीच का है, इसलिए इसको हम नो बॉन्ड रिजोनेंस भी कहते हैं। दिस इज ए परमानेंट इफेक्ट। इफेक्ट ऑफ हाइपर कंडुएशन, stability of alkene and alkyne, greater number of alpha CH bond for hyperconjugation results in greater stability. और मोर स्टेबल अल्कीन और अल्काइन होगा तो उसका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन और कंबशन कम होगा। हाइपर कंजर्वेशन स्टेबिलिटी टू कार्बोकेटायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल, जिसको हम लोग पढ़ेंगे आगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट। डायपोल मोमेंट, हाइपर कंजर्वेशन पोलैरिटी इन मॉलिक्यूल। वन मोर थिंग, हाइपर कंजुगेशन involving deuterium atom is very less effective, because CH bond, CD bond is stronger than CH bond, इसलिए ड्यूटेरियम के साथ हाइपर कंजुगेशन वेरी नेग्लिजिबल होता है। ये इसको कहते हैं रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, H की जगह Cl और ऑर्डर ठीक उल्टा जा रहा है। ये Cl माइनस के रूप में हुआ, ये 5, तो ये डीलोकलाइजेशन ऑफ अल्फा CCl बॉन्ड विथ 5 इलेक्ट्रॉन्स of sp2 hybridized carbon atom है in opposite direction, जिसको कहते हैं रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। नाउ d orbital dissonance, a negatively charged carbon atom is attached to atom with vacant d orbital। कार्बन निगेटिवली चार्ज है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो p ऑर्बिटल में, और एक दूसरा एटम है थर्ड पीरियड का जिसके पास वैकेंट d और p5 d5 बॉन्ड बनता है, जिसे Cl के साथ दिखा रहे हैं, तो इसको कहते हैं d ऑर्बिटल डिसोनेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, दिस इज ए temporary effect which involves delocalization of pi electrons या transfer of pi electrons to an atom under the influence of attacking reagent। प्लस ई इफेक्ट, हाइड्रोजन इज हाई अटैक कर रहा है जिसके इन्फ्लुएंस में pi इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया। माइनस ई इफेक्ट, Cn माइनस यहाँ अटैक कर रहा है तो इस इन्फ्लुएंस में pi इलेक्ट्रॉन इससे दूर चला गया। दैट्स ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखने को। विदाउट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते हो, इसलिए इस पे आपको सिंसियर रहना होगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर दबा लें, प्रॉपर नोटिफिकेशन, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगला आने वाला है आपको।